This is the normal distribution, standard table and values and the formula. Today we can finish it, the normal distribution. Concept, if it is clear now, we can stop it. So I want to repeat here, look at that. This is the concept, like bell-shaped curve is there here. Is like that. The general figure for this normal distribution table is this one. Exactly, this is a symmetrical figure. Z is equal to 0. This on this side you will get the values. All values are positive. Z is equal to 1. Z is equal to 2. On this side you have the value Z is equal to -1. Z is equal to -2. And the 0.5 is the total value of this side up to here. वहां से ले लो, जब तक देखेंगे उसके बाद मैं जाके लाके दे दे तो रिटर्न आंटी के पास. So this total value will be 0.5 total up to here. Okay. And whatever the value is required that we have to subtract from this. Let me question देख. इसमें 5-6 बिट्स में कर देता हूँ एक ही साथ. तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा सा क्लियर हो जाएगा. बेसिक क्वेश्चन है बट आपके लेवल को शूट करेगा आराम से. एक क्वेश्चन है, if capital X is a normal variate. Sometimes it may be given normal variate, sometimes normal distribution, sometimes normally distributed. All will have the same meaning. If capital X is a normal variable, variate variable with the mean, instead of given mu, here it is denoting with symbol m, small m, that is equal to 500, comma, and standard deviation, that is sigma value, is equal to 100. Okay. Find the following probabilities. Find the following probabilities. Find the following probabilities. So first bit is here. When probability, when X is strictly less than 620. Second bit is we have to find the probability when X lies between 500 to 634. Third question is when we have to find the probability when X is between 380 to 650. Fourth bit, when X is greater than 650. Fifth bit is probability when X is greater than 350. And sixth bit is when probability when X is less than 400.
तो इतने सारे बिट्स करने के बाद आई होप यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया अबाउट दिस प्रॉब्लम. So let us start one by one. Start solving the normal distribution. So for each and every bit, I'll show you the figure also. To whom it means वो किसका आप area find out कर रहे हो, that also I'll show you. Look at the first bit is when probability is x is less than 620. Okay. So यहाँ पर लिखेंगे अपन first bit probability when x is strictly less than 620. तो फिर x less than है तो ये greater than है तो we assume that x value is 620. We take x value is 620 and substitute in our standard normal distribution formula. This is capital X minus mu भी लिख सकते हैं मगर अपने क्वेश्चन में m है तो m लिख रहा हूं मैं कौन सिग्मा which is equal to कैलकुलेटर रेडी रखेंगे साथ में. This is 620 minus m mu value is 500 upon sigma is 100. So what is the answer? Tell me fast. Please don't take. minus 4.93. No. 620 minus 500 120 120 by 100 1.2 होता. क्या कर रहे हो? 620 minus 500 is 120 ना. 120 by 100 minus 4 point कैसा हुई? Simply 1.2 ना. Yes or no? Yes, sir. Yes. Probability of x is less than 620 का मतलब है the meaning of this is x will be converted to z. Probability of x will be converted to z normal distribution में convert कर रहे हैं. That is less than 1.2. Okay, we have to find out the probability when z is less than 1.2. तो अब इसका फिगर इमेजिन करो, देखो अब इसको फिगर कैसा रहता. यस, लुक एट दिस. अब मतलब आप कौन से कर्व का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं वो मैं इसको फिगर ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए. This is a well-shaped curve. Okay, this is exactly we know that it is 0.25 and the figure is symmetric. So always we draw the symmetric part. This is exactly z is equal to 3. Okay, perfect. Z is equal to 2. Now 1.2 where it will come? पॉजिटिव साइड ना यहाँ पर होगा ना 1 से थोड़ा आगे है ना. z is equal to 1.5 1.2 सॉरी ये चाहिए आप राइट. तो लेस देन मतलब इधर साइड का एरिया ये पूरा. देखिए मैं आपको शेड करके भी बताता हूँ कौन सा एरिया पर फाइंड आउट. ये पूरा फाइंड आउट करना है. ये पूरा ये पूरा का पूरा आपको फाइंड आउट करना है. जो पिंक कलर से शेड हो रहा है ना वो आपको फाइंड आउट करना है. ये पूरा लेस देन 1.5. ग्रेटर देन बोल तो फिर आगे जाता था. ठीक है ना. ये लेस देन 1.2 वाला पूरा पार्ट. तो अब अपन सॉल्व कैसा करेंगे. अभी मैं आपको बताना यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 0.5 रहता हमेशा से. यहाँ पर ऊपर भी फिगर में बताया. ठीक है तो 0.5 ये वाला इतना पूरा पार्ट तो 0.5 हो गया. प्लस ये टेबल में आप जीरो से लेकर जीरो से लेके 1.2 तक मतलब आप वो जो टेबल है आपका वो टेबल में आप वो वैल्यूज को आप चेक करना. आप वो टाइम मत लीजिए प्लीज. तो 0.5 मतलब ये टोटल एरिया 0.5 में लिख दिया यहाँ पर प्लस एरिया ऑफ जेड इज इक्वल टू देखिए जीरो से लेके
0 से लेके 1.2 तक, वो टेबल में अगर आप चेक करें तो वो जो मैं आपको जेड डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया, उसमें वो वैल्यू अगर आप 1.2 पे अगर वैल्यू देखे आप 1.2 पे, तो यूल गेट योर आंसर इज 0.3849, और इसमें 0.5 अगर आप ऐड कर लिए तो यूल गेट योर आंसर इज 0.8849 इज योर आंसर। दैट्स योर फर्स्ट बिट कंप्लीटेड। एक्चुअली ये क्वेश्चन में इतने सारे बिट्स नहीं आते, समझ में आया? मैं आपको समझने के लिए अपने सारे बिट्स करा रहा हूँ। एक दो बिट कौन से तो भी आता है आपको, मैक्सिमम 2 या 3 होंगे, बहुत से बहुत हो गया, राइट। वेरीफाई करना सीखे आप, ये टेबल में कैसा वेरीफाई करना है, वो वैल्यू कहाँ पर है टेबल में, कल बताया था ना, याद है? जी सर। हाँ, एक बार वेरीफाई कर लो आप अच्छे से, टेबल में वो वैल्यू 1.2 कहाँ पर आ रहा। नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ अगर आज टाइम मिला तो आज के क्लासेस के वैल्यूज को कहाँ कहाँ है वो एक टेबल में हाईलाइट करके ओके। देखता हूँ मैं, अगर मेरी दूसरी क्लास अगर नहीं रही तो। सेकंड बिट, we have to find out the probability of 500 is less than capital X is less than 634। मतलब 500 और 634 के बीच में की प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले x इज इक्वल टू 500 ले लेना अपन बाउंड्रीज को, फिर z टेबल में रखना, z डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर x इज इक्वल टू 634 लेना, फिर देखिए मैं बता रहा हूँ 1 by 1। सो व्हेन यू टेक x इज इक्वल टू 500, if you take x is equal to 500, formula is what? Capital X minus small m, that is mu by sigma, that is equal to capital X value is 500 minus small m value is इतना है यहाँ पर अपने पास 500 है, ये भी 500, वो भी 500 डिवाइडेड बाय 100। तो ऑब्वियसली आपको पता है ये तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 0। नेक्स्ट, व्हेन कैपिटल X इज इक्वल टू 634, देन Z इज इक्वल टू x माइनस m बाई, फिर से वही फॉर्मूले में रख, x माइनस m अपॉन सिग्मा, और अपने पास अब x की वैल्यू है 634, 634 माइनस 500 अपॉन में 100, तो कितना हो गया? 634 माइनस 500 अपॉन 100, जरा जल्दी से इसका आंसर बोलिए। एक्चुअली 134 आता तो ये 1.34 आता, ठीक है। सो देयरफॉर क्या फाइंड आउट करना है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ 500 is less than capital X is less than 634, we have to find out, and now this will be converted to probability of 500 पे आंसर आ गया 0, लेस देन x will be converted to z, लेस देन 634 पे इसका आंसर आ गया 1.34। ठीक है, मतलब 0 से लेके 1.34 की वैल्यू। अब क्या करेंगे आपको समझने के लिए फिर से एक बार मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए आपका फिगर हो गया, ये आपका बेल शेप कर्व हो गया, ओके। ये सिमेट्रिक है तो यहाँ पर वो z इज इक्वल टू 0 पे सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। 1.34 की वैल्यू मतलब यहाँ पर 1.34, सपोज दैट इज 1.34, इट इज दिस वन। 0 से लेके 1.34 बहुत आसान है ना। कैसा किधर होता, कौन सा होता वो, ये पिंक कलर का शेडेड पार्ट में होता, ठीक है। 0 से लेके 1.34 तक का होता ना वो। तो इसको अगर आप फिर टेबल में देखें वैल्यूज, 0 से लेके 1.34 तक, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको टेबल में 0.4099। ये तो एकदम सीधा सीधा है। 1.34 देखना, 1.3 देखना, फिर 0.04 कॉलम में देख लेना, खत्म। ये हो गया सेकंड बिट का आंसर। चलिए अभी मूविंग टू द थर्ड बिट। ये एक इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें कवर कर रहा हूँ, आ रहा, समझ में आ रहा? जी सर। आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम आज ही खत्म कर देंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें ज्यादातर पूछता रहता है एग्जाम में, तो आज ही खत्म करेंगे। और विदाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पेपर तो नहीं बनता, क्योंकि इम्पोर्टेंट। तो फिर प्रीवियसली अभी क्या फाइंड आउट करना है आपको? लुक एट दैट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, 380 से लेकर 650 तक। चलिए आ जाइए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ 380, ये थर्ड बिट है, 380 is less than x is less than 650. So when x is equal to 380, then z value is x minus m by sigma, which is equal to x value is 380 and small m value is mu value is 500 upon 1. So 380 minus 500 is 80. 80 by 100 मतलब ये हो जाएगा सीधा सीधा माइनस में आएगा आंसर 1. चेक कर लो आप, क्रॉस वेरीफाई भी कर लो आप. When x is equal to 650, if you take 650, if you take, then z is equal to same. If you put here capital X minus mu upon sigma, this is equal to 650 minus 500 upon 100. This is what 150 upon 100, मतलब ये सीधा सीधा हो जाएगा 1.5. So therefore probability of 3, ये आपके क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिए प्रॉब्लम, तो लोग को कंपल्सरी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले सकते हैं लोग. द डिस्ट्रीब्यूशन क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो देयरफॉर करेक्ट 380 पे इसका आंसर कितना है, -1.2 है, लेस देन x विल बी कन्वर्टेड टू z, लेस देन 650 पे इसका आंसर है 1.5. मतलब आपको प्रोबेबिलिटी -1.2 से लेके 1.5 के बीच में का पार्ट आपको फाइंड आउट करना है. तो इमीडिएटली अगर आप उसको इमेजिन करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं वो कैसा है, तो आप देख सकते हैं. ये आपका कर्व है, ये आपका सिमेट्रिक पार्ट है. ये -1.2 मतलब ये कहीं पर यहाँ होगा, -1.2 विल बी हियर, सपोज 1.5 विल बी हियर. दिस इज योर 1.5 पार्ट. तो ये दो मैं अभी पिंक कलर से जो शेड करूंगा ना, वो पार्ट आपका रिक्वायरमेंट है, ये वाला पार्ट आपको पता है. और वो टेबल में नेगेटिव वैल्यूज नहीं रहते, माइनस का मतलब भी प्लस में ही चेक करना, सिमेट्रिक रहता कर भी. तो 0 से लेके 1.5 पर तो आपको फाइनल टोटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो कैसा आएगा देखिए. एरिया, एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू -1.5 नहीं, 1.2 ओनली. ये नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव में भी सेम आंसर रहेगा, पॉजिटिव में भी सेम आंसर रहेगा, ये कर्व सिमेट्रिक रहता. प्लस एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू 1.5. तो चलिए वो टेबल में अगर आप देखें 0 से लेके 1.5 तक, तो यहाँ पर वो आंसर आ रहा 0.4332 प्लस 0.3849. तो इसका आंसर आ रहा 0.8181. आप क्या करो मालूम, बाद में ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ ना 0.43, ये जो भी लिख रहा हूँ ना, उसको एक बार आपको वेरिफिकेशन कर लो किससे, आपके कैलकुलेटर, तो आपको पता चल जाएगा वो कैसा हो रहेगा. जी सर. जी. अभी आप और भी करेंगे दूसरे, अभी करो एक. जी. तो अभी नेक्स्ट फोर्थ बिट में आपको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 650. ये फोर्थ बिट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 650. So when x is equals to 650, now we substitute in our formula z is equal to x minus mu भी हो सकता, m भी हो सकता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अपॉन सिग्मा. दिस इज 650
माइनस 500 अपॉन 100, तो ये 150 अपॉन, सॉरी 150 अपॉन 100, मतलब ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x is greater than 650. So as I said, x will be converted to z. Z is greater than 1. तो z is greater than 1.5 पे आपको बताना है। तो फिर से अगर आप वो फिगर जिसमें से आप फाइंड आउट कर रहे हो वो देखना चाह रहे हो, तो ये हो गया आपका कर्व, ये हो गया आपका z इज इक्वल टू 0। देखो मैं बार बार फिगर उतार के बता रहा हूँ कौन सा पार्ट आप कर रहे हो। z इज इक्वल टू 1.5, ग्रेटर देन चाहिए अपने को, ग्रेटर देन मतलब ऐसा है, इधर साइड इधर जाएगा, ये पूरा ग्रेटर देन। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन लेस देन का भी करे थे, इधर देखिए यहाँ पर लेस देन करते, लेस देन मतलब इधर गया, देखिए पिंक कलर का शेडेड दिख रहा है ना आपको, है ना। इसको भी मैं पिंक कलर जी से कर दूं क्या? पिंक कलर से कर दिया तो आपको मालूम होता है, वो एरिया आप फाइंड आउट, ये लेस देन बोल तो वो साइड जाना है, ग्रेटर देन बोल तो ये। अब आपको तो पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो तो 0.5 होगा हमेशा से। ठीक है ना, तो टोटल एरिया तो 0.5 है। 0.5 में से अगर अपन ये पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कौन सा वाला, 1.5 वाले पार्ट को निकाल दिए, तो आपको शेडेड पार्ट का रीजन आपको पता चल जाए। तो कैसा करना पड़ेगा, एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू 1.5 करना है, 0 टू 1.5, 1.5 टोटल एरिया तो 0.5 है आपको पता है, तो 0.5 में से मतलब ये टोटल डिस्टेंस में से एरिया ऑफ जेड पॉइंट वो निकाल दिए तो आपको मिल जाए z इज इक्वल टू 0 टू 1। तो ये तो 0.5 तो रहेगा, वो पूरा इज माइनस। तो टेबल में 0 से लेकर 1.5 पे अगर आप वो वैल्यू चेक करें तो 0.4332 आ, और इसको 0.5 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अच्छा मैं एक चीज बोला था आपको स्टार्टिंग में, याद है अपना प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 और 1 के बीच में रहेगी, मोर देन 1 भी नहीं रहेगी, लेस देन 1 भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं। ये पूरे आंसर 0.0.0 में जा रहे, देखिए अपन आगे भी नहीं जा रहे 1 के, 0 के नीचे भी नहीं जा रहे, नेगेटिव आंसर भी नहीं आ रहा, टाइम प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहता। ठीक है ना, तो और तो है फिफ्थ बिट, फिफ्थ बिट में आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 350, x is greater than 350। So when x is equal to 350, सब में पहले देखो अपन x वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं जो भी है, सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, दैट इज x माइनस m अपॉन सिग्मा। इंडिविजुअल क्वेश्चन आए तो भी कर सकते हैं आप, 350 माइनस 500 अपॉन 100। सिग्मा की वैल्यू चेंज हो सकती, म्यू की वैल्यू चेंज हो सकती, तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, कहीं को बोले तो 300 छोटी वैल्यू है, माइनस 1.5। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x is greater than 350 means, x is greater than 350 means probability of x will be converted to z here, greater than minus 1.5। ठीक है ना, तो फिर से आप वो फिगर देख लो जिसमें से आप वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ये बेल शेप कर्व हो गया आपका। ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया आपका, यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 पे, राइट। माइनस 1.5 मीन्स इट विल बी समथिंग हियर, समवेयर हियर, माइनस 1.5। 1.5 का ग्रेटर देन बोल तो ये वाला, ये पूरा यहाँ से लेके पूरा ये वाला, ये वाला, चलो अब करेंगे कैसा। आपको तो पता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है 0.5 होता है, ये यहाँ तक, और ये भी 0.5 होता है। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, सिमेट्रिक कर्व है, इसको बंद करें तो टोटल सम इसका 1 होगा। तो अपने को जो एरिया रिक्वायर्ड है वो शेडेड वाला पार्ट है, तो अपन क्या करेंगे, ये टोटल एरिया तो 0.5 होता है, 0.5 प्लस
टोटल ये 0.5 में से इस वाले पार्ट को निकाल देंगे। तो कैसा करेंगे, इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 कौन सा, ये वाला पार्ट, प्लस अब ये टोटल 0.5 में से जिसको मैं पिंक कलर से शेड करा उसको निकाल देना है बाहर। तो अपने को 1.5 का एरिया, अच्छा रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड, फिर आ जाएगा एरिया ऑफ z इज इक्वल टू 0 to 1.5, नेगेटिव नहीं लेना है 1. तो दिस इज 0.5 प्लस 0 से लेके 1.5, देखो ये 0.5 प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो रहा, ये हो रहा आपका जैसा यहाँ भी करते हैं 1.5 में आंसर जो आ रहा था वो कांस्टेंट है, बार बार वही आ रहा 0.4332, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 0.9332 इज आंसर। और एक बिट है ऐसा करने का, वो है सिक्स्थ बिट। सिक्स्थ बिट में करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 400, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 400। तो फिर x इज इक्वल टू 400, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, x इज इक्वल टू 400, दैट इज इक्वल टू x माइनस m की वैल्यू यहाँ पर है 500, चलिए वो भी डायरेक्ट कर देंगे, x है 400, m है 500 और सिग्मा की वैल्यू है 100। तो ये आंसर कितना आएगा, सीधा सीधा -1 आ जाएगा ना, -1। सो व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 400 का मतलब होता x will be converted to z is less than -1, आपको वैल्यू फाइंड आउट, z is less than -1। तो ये देखिए आपका कर्व, ये आपका बेल शेप कर्व हो गया, z is equal to 0, -1 ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं होगा, z is equal to माइनस, ठीक है ना। लेस देन पार्ट मतलब ये वाला पार्ट आपको चाहिए, ये वाला शेड जिसको कर, ये आपका रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे, 0.5 में से ये वाले एरिया को निकाल देंगे, पता, ये वाले एरिया को इसमें से निकाल दो, सीधा खत्म हो काम, खत्म हो गया। So this is equal to 0.5 minus area of z is equal to 0. Don't take minus because minus of negative में plus मिक्स हो गए, सिमेट्रिक कर्व बताओ। This is from 0.5, मतलब ये टोटल जो आंसर है यहाँ से यहाँ तक का जो 0.5 था ना, वो टोटल में से ये वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को, 0 से लेके 1 वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, -0.3413। So if you subtract from 0, you get your answer is 0.1587. This is the finally we have done 6 bits here, ठीक है। तो 6 बिट्स करें अपन। एक क्वेश्चन और एक जो कल अपन कंटिन्यू कर रहे थे, इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, वो कंप्लीट कर देता हूँ मैं, अदरवाइज वो अधूरा हो जाएगा। वो वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी कंप्लीट कर देता हूँ। वो क्वेश्चन कल का जो था, शायद दूसरा है कि क्या एग्जैक्टली, मतलब उससे रिलेटेड है इतना बोल सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ऐसा है, मार्क्स मार्क्स of 1000, marks of 1000 students, marks of 1000 students of university, marks of 1000 student of university are normally distributed, normally distributed, मतलब ऐसा डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं देके आपका कुछ वर्ड प्रॉब्लम के जैसा दे रहा हूँ, विथ विथ मीन, विथ मीन मतलब म्यू की वैल्यू या एम भी ले सकते हैं आप 70 एंड
standard deviation that is sigma value of 5. Sigma value है 5. Estimate. यहाँ पे मैं थोड़ा अलग कलर यूज कर रहा हूँ, प्लेन कर रहा हूँ, उसका रीजन आपको बाद में बोलूंगा मैं. Estimate number of students. Estimate number of students whose 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 marks will be marks will be डायरेक्ट नहीं देखे, इनडायरेक्ट दिया क्वेश्चन ये. between 60 to 75. 60 to 75. Next, more than 75. Then 75. 75 से ज्यादा मार्क्स आए वाले स्टूडेंट्स. बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का डेटा ऐसे कैलकुलेट करते थे. लेस देन 68. ठीक है, चलिए अब इसका आंसर दे देंगे अपन बहुत जल्दी से. तो यहाँ पर देखिए आप, म्यू की वैल्यू, स्मॉल एम की वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको आप, वो है कितनी, 70 है. स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा की वैल्यू है 5. और कैपिटल एन जो है ना, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है 1000. तो आपको ये फाइंड आउट करना है. देखो मैं इसको वर्ड्स में लिख देता हूँ आपको सब सुविधा के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए. 60 से लेके 75 के बीच में ऐसा हो, ये आपको फाइंड आउट करना है. और इसका मतलब है मोर देन 75, यानी कि एक्स वैल्यू इज मोर देन 70. और लेस देन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 68. तो मैं जल्दी से एक खत्म कर देता हूँ क्वेश्चन को फर्स्ट बिट के आंसर के लिए. फर्स्ट बिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 60, मतलब पहले एक्स की वैल्यू 60 ले लेंगे, फिर फॉर्मूले में रखेंगे z इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, कैपिटल एक्स माइनस म्यू, स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, अपॉन सिग्मा. द कैपिटल एक्स वैल्यू इज 60 माइनस म्यू वैल्यू इज 70 अपॉन सिग्मा इज 5. ये हो गया -10/5 का मतलब हो जाता सीधा सीधा -2. नाउ व्हेन x is equal to 75, so this implies that z is equal to 75 minus 70 upon 5. तो ये हो जाता 5/5, मतलब 1. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 is less than x is less than 75. इट मीन्स 60 पे इसकी वैल्यू आ गई थी -2, is less than z is converted, x is converted to z, and this is 1. ये आपको फाइंड आउट. अगर आप इसका फिर से आप बोले सर इसका फिगर बताइए, तो फिर आप ये देखिए, ये वाला इसका फिगर होगा, एक बेल शेप कर्व होगा. -2 मीन्स इट विल बी समवेयर हियर, दैट इज इक्वल टू -2. और 1 बोल तो ये कहीं यहाँ पर होगा, कहीं होगा, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते हम ये. तो नाउ वी आर फाइंडिंग दिस एरिया. यू हैव टू विजुअलाइज द पार्ट टू whom you are going to be find, मतलब किस पार्ट का एरिया आप फाइंड आउट कर रहे हो, वो आपको इमेजिन करना बहुत जरूरी है. ये वाला पार्ट अपन फाइंड आउट करें, ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू, क्या बोला था मैं, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है, z2 प्लस एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू. तो आप टेबल में देख लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4772 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3413, और इन दोनों को ऐड करने के बाद 0.8185. ये हो गया आपका फर्स्ट बिट का आंसर. चलिए जल्दी से सेकंड बिट का आंसर भी दे देंगे अपन. सेकंड बिट में आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ
x इज ग्रेटर देन 75 पे क्या होगा? अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कितने इसके बीच में है, 60 से लेके 75। तो जो टोटल स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है ना, टोटल स्टूडेंट्स जो भी है, टोटल स्टूडेंट्स आपको बताना है कितने हो रहे हो। तो क्या करना है, ये 0.8185 को 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो मैं बोला था ना आपको, ग्रीन कलर से लिखने का मीनिंग बाद में बोलता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट कहीं भी क्वेश्चन में पूछा तो जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, वो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आया उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आ रहा है 818.5। 0.5 स्टूडेंट्स तो नहीं रहते, तो इसका मतलब 0.5 को नियर अबाउट 819 स्टूडेंट ऐसे है, मतलब 1000 स्टूडेंट में जिनके मार्क्स क्या बोल सकते हैं अपन, 60 से लेके 70 के बीच में है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बिट का आंसर। मैं सेकंड बिट कर देता हूँ, थर्ड बिट होमवर्क दे देता हूँ आपको। एक्स इज ग्रेटर देन 75। 75 का मतलब है, पहले तो आप ले लेना एक्स इज इक्वल टू 75 यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद आप जेड के फॉर्मूले में रखिए, एक्स आ गया 75 माइनस ये हो गया म्यू की वैल्यू 70 अपॉन 5। 5/5 मतलब ये तो सिर्फ सीधा 1 हो जाएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 75 का मतलब, ग्रेटर देन 75 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 पे होता, ठीक है ना। जेड इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 का मतलब ये बेल शेप कर यहाँ पर छोटी सी उतार देता हूँ मैं, ये वाला, ये जेड इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको चाहिए। तो क्या करना है, सीधा सीधा 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0.5 माइनस ये वाला एरिया, ये 0.3413 आ रहा, और इसका जो सिंप्लीफिकेशन है 0.18, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें आप लास्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो 1000 से मल्टीप्लाई करें 0.1587, तो इसका आंसर आ रहा है आपको 159 स्टूडेंट्स ऐसे है जिनका मार्क्स जो है ना मोर देन 75 है। लेस देन 68 का आप कर लो, लेस देन 68 के 345 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके मार्क्स लेस देन, समझ में आया कॉन्सेप्ट नॉर्मल का? एक बार यस बोल दीजिए आप। हेलो, सर थोड़ा सा डाउट है सेकंड वाली बिट में। क्या डाउट है?